जी, मेरा नाम नबीला नज़ीर है एंड यू आर वाचिंग ओपन हाउस 17 बाय Banjaiga. So architecture is, I think, a process. Of course, we all know of creating a space for yourself, for your clients, in which they are the best that they can be, right? So it is something that, I mean, you can just put a roof over your heads and 4 walls, and that's shelter in its most basic form, right? You can live in a cave. That's also architecture. आपको basically shelter चाहिए from the elements and a place that you can come back to and call your home. So to me, I think architecture doesn't have to be fancy, doesn't have to be big, doesn't have to be iconic in the sense that we think iconic is, but it can be extremely simple, extremely basic, a reflection of who the person is that it is serving. That, I think, is the most important. If I am practicing, my client is an individual and my other client is another individual. So I should not have my stamp on the house, right? Nobody should be able to see the work and say कि जी ये नबीला का घर है. Why? एक client दूसरे client से फ़र्क है. So it always is a synthesis. So जब मेरा काम तो obviously नज़र आएगा उसमें, but when my client is an individual who is different from the individual B, तो जो synthesis है वो दोनों दफ़ा फ़र्क होना चाहिए. उसके साथ मिलके मैं क्या प्रोड्यूस करती हूँ और B के साथ मिलके मैं क्या प्रोड्यूस करती हूँ is something different, right? मगर वैल्यू सिस्टम जो है ना वो नहीं चेंज होना चाहिए. So I think हमें सब आर्किटेक्ट्स का एक वैल्यू सिस्टम होता है, आई थिंक, विच इज़ प्रीटी सिमिलर. देयर इज़ अ कॉमन थ्रेड बिकॉज आर्किटेक्चुरल एजुकेशन में देयर इज़ अ कॉमन थीम ऑफ responsibility towards your client, social responsibility. Something should make economic sense. There should be no waste, not excessive waste. थोड़ा waste तो होता है obviously. We can always be more prudent than what we are, but excessive waste से I think हमें थोड़ा गुरेज करना चाहिए. फिर I think आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें. चलो कोई बात नहीं, अगर 10 के बजाय 9 प्रोजेक्ट्स कर लें साल में या 8 कर लें, 1-2 प्रोजेक्ट्स कम कर लें, टाइम उसके साथ ज़्यादा लगाएं टू एजुकेट देम. I think ये बहुत ज़रूरी है. You see, you are educated in this field. Now it is your जिम्मेदारी to explain to your client why is it necessary what you are saying. Just because client नहीं मानता, you cannot just do run of the mill stuff. You just cannot do it. अब एक डॉक्टर है, वो कह दे कि जी वो मानता नहीं इस दवाई खाने को, इसलिए वो दूसरी दवाई दे रही, ये तो नहीं हो सकता ना. अब उसको बहस करनी पड़ती है उसके साथ कि जी आपको ये करना है बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस. तो अब आजकल पीपल आर रिसेप्टिव. They know that there is a green movement, very strong green movement in all aspects of our lives. So zero waste पे है, carbon footprint को कम करना. अब carbon footprint को आपको समझना चाहिए कि ना सिर्फ processes of that हमारा waste कम हो and the kind of materials that we use, but there is something called an embodied energy, of every material. अब जो लकड़ी की कुर्सी है उसकी एक embodied energy है जो कि बहुत कम है, क्योंकि दरख्त उगा है, उसने अपने उगने में दुनिया को ऑक्सीजन दी है, शेड दिया है, पत्ते, फूल, खाद, सब कुछ दिया है, एंड देन आपने उसकी काठ की कुर्सी बना ली. होपफुली यू रिप्लेस दैट ट्री विद अनदर ट्री. आई एम सेइंग इन अ वर्ल्ड वेयर ट्रीज आर बीइंग रिप्लेस्ड. लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी की खिड़कियाँ और कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है बिकॉज उसके बनाने में कोई एम्बॉडीड एनर्जी नहीं खर्च, as opposed to steel, as opposed to aluminum, as opposed to acrylic, as opposed to so many other kinds of PVCs. उनको बनाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, that is always going to be a part of that material, and that is the embodied energy. So we should have an eye on that कि जो हम not even मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसके बनाने में, उसके ट्रांसपोर्ट करने में, अगर हम 7 समुंदर पार से कोई चीज़ मंगा के इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, जो कि हमें अपने घर से मिल जाती है आसानी से, हमारा यहाँ से अगर स्टोन मिल जाता है या थोड़ी हल्की टाइल यहाँ से मिल जाती है, उसके बजाय हम स्पेन से मंगाएं या हम किसी और यूरोपियन डेस्टिनेशन से मंगाएं, कितना फ्यूल खर्च हुआ है उसको आने में. डू वी इवन हैव एनी आइडिया? हम ना करते तो वो फ्यूल ना खर्च होता, एम्बॉडीड एनर्जी उसकी
शामिल हो गई उसके बीच में वो, यू नो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना, जस्ट बिकॉज क्लाइंट कैन अफोर्ड इट, यू नो, वी शुड गिव देम अल्टरनेटिव्स। यू सी, उनका राइट है जो भी चीज़ वो लगाना चाहते हैं, महंगी से महंगी जहाँ से मर्ज़ी ला के लगाएं, बट आप उनको एस्थेटिक्स में चॉइस दें कि जी आप ये करेंगे तब भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप एस्थेटिक्स में उनको लोकल, मोर इकोनॉमिक, मोर ड्यूरेबल, ईजिली मेंटेनेबल और क्लासिकल, बिकॉज यू सी आपकी जो अपनी चीज़ है नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। सात समुंदर पार की जो चीज़ है वो ट्रेंड बदलेगा तो वो कंडेम आप उसको कर देंगे कुछ सालों के बाद। सो यू नो, ये सब चीज़ें हैं विच आर, when we say rooted to a place, this is what it means. When you can only be rooted to a place when you are from that place, you know, not when you are 90% imported. So I mean, मेरे ख्याल में, I mean, I'm rambling, but I think architecture, of course, in its most basic form is a shelter, right? And in its slightly more sophisticated form, it's a reflection of who lives there, or if it's an office building, who uses that space. And hence, you know, it has to bring out the best. Again, something I always say to my clients कि जी एंटरटेनमेंट जब हो तो ये खुल जाए दीवार, वो खुल जाए, ये सारी स्पेस एक बन जाए, यूँ हो जाए। भाई एंटरटेनमेंट, अनलेस यू आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, आप कितनी दफ़ा करते हैं? मेरा मतलब है कि आपके एवरी डे लिविंग should be a source of joy for you every day. That you should plan for your everyday life, not for your you know, for your fancy moments in your life, you know. खुशियों के साथ आप वो सब करें, but I think आप अपने आप पे ज़्यादा importance दें rather than जो आपके घर में आएंगे once in a while, उनके ऊपर भी होनी चाहिए, but आप are the most important, you know, you and your family. ये एक अगेन छोटा सा बरामदा है जो which leads into our courtyard, और इसका भी बस यही फ़ायदा है कि एक ट्रांजिशन सी स्पेस आपको मिल जाती है जब आप बाहर से निकल रहे हैं। इवन इफ़ देयर इज़ लिटिल रेन, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ज़्यादा धूप है तो यू कैन सिट हियर सहन में अगर आप नहीं जाना चाहते। सो ट्रांजिशन यू नो इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू मी। अच्छा, ठीक, ऊपर हम ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा एक अगेन दिस कॉमन स्पेस लाउंज आप समझ लें। ये ज़्यादा इस्तेमाल सर्दियों में होता है बिकॉज यहाँ रोशनी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा ऑब्वियसली बीइंग फर्स्ट फ्लोर ये गर्म भी हो जाता है। एज आई सेड व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग द प्लान ऑन द स्केच कि बहुत सिंपल लेआउट है इसका घर का। ये लाउंज जो है ये एग्जैक्टली उसी स्पेस के ऊपर है जहाँ हमारे नीचे का लाउंज है। ये पीछे जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, दिस इज़ माई हस्बैंड्स होम ऑफिस, ये किचन के ऊपर है। और इसका जो वो हमने जिस विंडो में मैं बैठी थी, वॉक थ्रू एरिया था, वो इसका बाहर बालकनी बन जाती है बेसिकली। सो वी हैव 3 आई शुड से 4 little open spaces on the first floor. 2 of those, one slightly biggish terrace, not big but 10 by 10 का terrace है, that's on top of my son's study which is now my office. उसके ऊपर वो जो 10 by 10 का space है, that overlooks the courtyard, वो सर्व करता है हमारे कपड़े वपड़े सूखने के लिए भी। ऑल्दो वो नज़र आते हैं कमरे से जब वो सूख रहे होते हैं, बट किसी और को नहीं नज़र आते, बाहर से किसी को नज़र नहीं आते। एक और स्पेस है, छोटी सी बालकनी जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के बाहर है, दैट ऑल्सो ओवरलुक्स द कोर्टयार्ड। सो दीज आर 2 small spaces which are you know which kind of have the courtyard view, the सहन व्यू। फिर एक और छोटी सी बालकनी है बिल्कुल जहाँ हमारा वो एक लकड़ी का झूला टाइप का बेंच है, दैट इज़ टुवर्ड्स द फ्रंट, दैट फेसेस साउथ। उसको पूरा स्पेक्टेकुलर दरख्त जो है ना वो ढक लेता है सारा, तकरीबन सारा साल, 1 महीना या 1.5 महीना उसके पत्ते झड़ते हैं जिससे बाहर नज़र आता है। वरना वो आपकी इतनी प्राइवेट जगह है कि वहाँ पर आप सो भी जाएं तो आपको कहीं बाहर से, हालांकि यू फेसिंग द सड़क, आपको नज़र नहीं आता बिकॉज दैट दरख्त माशाल्लाह से इज़ सो लश। तो दैट्स अ वेरी वेरी यू नो नाइस प्लेस इफ़ समबडी वांट्स टू रीड। मैं इतना बहुत ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ, मगर इफ़ समवन वांट्स टू रीड तो वो वहाँ बहुत चैन से बैठ सकते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो यू नो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन लार्ज टेरेस overlooking the सड़क which is of no use to anyone, आपके strategically placed open spaces हों जो voids भी interesting create करती हैं, रोशनी भी आने देती हैं आपके सहन में, और आपको अलग अलग मकसद के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं।
छोटी बालकनी में आप बाहर बैठ सकते हैं चैन से। फिर एक और छोटा सा सर्विस हमारा पीछे है, लिटिल स्पेस जिसमें हमारा बॉयलर लगा हुआ है रेडिएटर्स का, उसमें हमारा खुरा है, कोई आपने पोछा धोना है या कुछ करना है, वो एक अलग स्पेस है। सो आई थिंक सेपरेटिंग दीज लिटिल ओपन स्पेसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड ओरिएंटिंग देम अकॉर्डिंगली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, आई थिंक एक बड़ी के बजाय या दो बड़ी के बजाय छोटी छोटी 3-4 आर मच मोर फंक्शनल एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्पेसेस। So इसके पीछे beyond my husband's office is again exactly the same as you saw on the ground floor, कि वो एक छोटी सी वेस्टिब्यूल है जहाँ हमारी एक्सरसाइज मशीन है, अगेन एन आयनिंग स्टेशन इज़ देयर, छोटा सा एक टी रूम है वहाँ से निकल के, यू नो, सो यू कैन मेक योर चाय बाय, एंड देन बियॉन्ड दैट आर द 2 rooms which are exactly the same as ground floor. So very very simple basic layout. When we came up the stairs, वो एक passage है which kind of widens as it enters into this lounge, or where it widens that becomes my little area to meet my clients, because वो बड़ा अच्छा, you know, सर्दियों में रोशन और गर्म सा होता है तो हम वहाँ पर बैठ जाते हैं। सो आई काइंड ऑफ हैव अ समर ऑफिस एंड अ विंटर ऑफिस। ज़्यादा गर्मियों में मैं नीचे यूज़ कर लेती हूँ, जब जो मेरी बेटी की स्टडी थी पहले, और जब वो होता था तो आई यूज़ टू जस्ट वर्क ऑन द डाइनिंग टेबल और ऑन द किचन टेबल। और नाउ व्हेन ही इज़ गॉन सिंस 2 years तो मैं अब उसका कमरा यूज़ करती हूँ समर्स में, और ऊपर वाला हिस्सा यूज़ करती हूँ इन द विंटर्स फॉर माई वर्क। सो एक तो खैर आई थिंक सारे आर्किटेक्ट्स को ही शौक़ होता है, यू नो, क्राफ्ट्स का, हाथ से बनी हुई चीज़ों का। आई थिंक दैट्स व्हाट हु वी आर, यू नो, वी लाइक टैक्टाइल, यू नो, स्टफ़, जिसको देख के कुछ लगता है कि जी ये किसी ने खुद हाथ से बनाया हुआ। बनी हुई तो चीज़ें बहुत सारी हाथ से होती हैं, बट किसी किसी की फिनिश ऐसी होती है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि ये हाथ से बनी हुई है। बट थिंग्स दैट आर वेरी क्राफ्टी कनेक्ट यू इमीडिएटली टू द क्राफ्ट्समैन, एंड यू नो, आपके जहन में आ जाता है कि हाँ ये पॉटर ने बनाया है, ये किसी बुनने वाले ने बनाया है, ये तरखान ने बनाया। अब ये जो चरपाइयाँ हैं, आई मीन, इनको देख के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है, मेरे जहन में आ जाते हैं वो लोग जो वो खैराती जिनको बोलते हैं, जो आपका ये स्पिंडल्स जैसे बनाते हैं लकड़ी के। फिर जो ये इनका ये जो है इनका ये जो टंग एंड ग्रूव जॉइंट जो नज़र आता है एक्सपोज्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी चरपाई का जो एक फीचर होता है, एंड उसकी बनावट, यू नो। सो यू नो, ये मेरा डाची के साथ भी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, आई एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, एंड हमारा मकसद है टू एलिवेट बेसिकली आवर क्राफ्ट्स टू द लेवल दैट शुड बी, यू नो, एट। अभी तक हमारे क्राफ्ट्समैन को एक कोई ऐसी चीज़ समझी जाती है कि कोई ख़ास वो नहीं है, हालांकि there were once, you know, there was a group from Scotland who had something like Dachi in Scotland, who had come to visit us at Aisha Nurani's house, and उनको हमने ये हमारे गुजरात के जो हैं आरिफ पॉटर, उनको काफ़ी लोग जानते हैं, आरिफ उसका नाम है, जो गुजराती मिट्टी से वो कागज़ी प्याले बनाते हैं। आई थिंक ही इज़ द ओनली वन प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड जो इतने बारीक बनाते हैं कि दे लाइक पेपर थिन। हमने वो आई थिंक 50-50 रुपए का प्याला होता है, वो भी हमने इंसिस्ट करके उसको ये कीमत रखाई है, वो तो इससे भी सस्ते बेचता है। तो उनको हमने वो एक प्याला दिया, तो वो उसको यूँ, यू नो, पकड़ के बैठे हुए थे, एंड दे सेड कि ये अगर वहाँ पर कहीं हो तो इट वुड बी इन अ म्यूज़ियम, इट इज़ समथिंग सो प्रेशियस। और हम लोग वहाँ पर पानी पी के उसको डिस्पोजेबल समझते हैं गुजरात में, और उसको फेंक देते हैं। सो यू नो, हमारे एंड यू नो उसके अपने जो बच्चे हैं, आई इंसिस्ट एंड टू हिम कि तुम्हारे बच्चे क्यों तुम्हारे साथ नहीं सीखते, बिकॉज विद हिम दिस क्राफ्ट इज़ गोइंग टू डाई। एंड ही सेज़ कि जी वो समझते हैं कि इसमें कोई इज़्ज़त नहीं है, एंड यू नो, वो एक कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई एक कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो उससे तो कोई सीखने को तैयार नहीं। तो दैट टू मी इज़ सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, यू नो। सिमिलरली ये जो बुनते हैं हमारे, यू नो, द स्टाफ हु इज़ इन आवर हाउस, उनको इंसिस्ट करके मैंने कोई आज से 7-8 साल पहले किया था कि हर सूरत तुम लोगों ने बास्केटरी को रिवाइव करना है, बिकॉज यू नो ये लोग जब गाँव से आते हैं, इनके डीएनए में क्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, कोई कुछ बुनता है, कोई कुछ बनाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो लोग यहाँ माइग्रेट करके आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ सैडली मीनियल वर्क, दे आर एक्चुअली सो मैनी ऑफ देम आर क्राफ्ट्समैन, यू नो। अगर आप उनको ज़रा सा कुरेदें तो उनमें से ऐसी स्किल्स निकल आती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सो ये लोग मानते ही नहीं थे, जैसे हमें नहीं आती बनानी। मैंने कहा हर सूरत तुम लोगों ने बनानी। वो कनेक्ट इस तरह हो रहा है कि आर्किटेक्चर को भी मैं समझती हूँ कि वो एक किस्म का क्राफ्ट है, राइट। सो आर्किटेक्चर टू मी इज़ ऑल्सो, आई मीन आई वुड डियरली लव टू बिल्ड इट माई सेल्फ, सारा घर। और मेरे बेटे ने और मैंने बनाया भी था साथ साथ, यू नो, मेसन्स के साथ। आई मीन माई सन वॉज एट दैट टाइम 7 or 8 years old, वेरी क्यूरियस, सो ही ऑल्सो लेड ब्रिक्स विद हिम
उसको लगाया, सीखा कि कैसे लगाते हैं, मसाला कैसे बनाते हैं, लगाते कैसे हैं। जब मैं ये ब्लॉक्स बना रही थी मिट्टी के, जिसका मैंने भी जिक्र किया है, CSCB जो हैं, जो हम लोगों ने साइट पे बनाए थे, उसमें मैं भी शामिल थी। मिक्स कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है कि उसका मॉइस्चर ठीक है कि नहीं। Building is a craft, right? It's a building craft. So we should, just because it's so big, so a person can't do it oneself, so one needs help. But nevertheless, you should be involved in it. I mean, it's not like you cannot do it. You should be able to do it, but you have an extra pair of hands, many extra pair of hands to help you along the way. But आपको आना चाहिए करना. So I think craft, क्योंकि वो भी है, hence every other kind of craft is extremely precious to me. They have a lot of my respect. Potters, weavers, our vegetable dyers, जो भी लोग हैं, I mean, all respect to them. जी, they are very professional. I mean, I'm amazed कि वो कितना professionally, time से अपना सारा coach, and so many things I'm learning from them, about technology, or how to use technology in communicating. जो कि आई थिंक हमारी एज ग्रुप में अब ज़रा थोड़ा सा हम लैग बिहाइंड कर जाते हैं. तो इट्स नाइस टू कीप इन टच विद यंगर फोक्स. मेरे लिए इट्स बीन वेरी रिजुविनेटिंग, आई वुड से. या, इट्स वेरी नाइस.